Hello everyone, myself Narayana sir from Saraswati Intelligence Academy वापी. So dear student, जैसे तुम्हें चैप्टर 7 चल रहा है, आज हम पार्ट 13 चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम. तो पार्ट 13 में आज इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और इससे बिफोर हम आपको रिमाइंड करा दें पार्ट 6 के अबाउट. तो पार्ट 6 में हमने किस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला था. जो पॉइंट है वो रिलेशन बिटवीन Km Kp, डिस्कशन कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस एंड न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड है. तो देन आप आज के टॉपिक में जो जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा स्टूडेंट, वो है डाई एंड पॉली बेसिक एसिड एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेस प्लस फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट. इन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा आज. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट पॉइंट, डाई एंड poly basic acid and di poly acidic base. तो इन पॉइंट को कहते हैं आप डाई दैट्स इंडिकेट 2 एंड पॉली दैट्स इंडिकेट मोर देन 2. तो एसिड पॉलीबेसिक बेसिक वर्ड दैट्स इंडिकेट एसिडिटी. तो एसिड के एसिडिटी को हम बेसिसिटी से डिनोट करते हैं यहाँ पर. तो डाइबेसिक का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड and oxalic acid is a dibasic acid. Reason? Now when such kind of acid added in water or dissolved in water, then produce two protons. ये दो प्रोटॉन मिस करते हैं, इसलिए इनकी बेसिसिटी क्या है? 2. तो दैट इज कॉल्ड डाइबेसिक. सो ऑक्सैलिक एसिड इज ए डाइबेसिक acid. So why alkylic acid is called dibasic acid? Because it loses 2 protons in aqueous solution. Like as example, sulfuric acid, when added in water, get dissociate and produce twice S plus SO4 2 minus. So now here basicity is 2. Next, carbonic acid. There is 2CO3 twice S plus CO3 2 minus. Here basicity is 2, and now similar way, now oxalic acid C2H4O get dissociate, produce twice S plus C2O4 2 minus. Here sulfate ion, carbonate ion and oxalate ion. So alkylic acid when added in water now produce 2 protons. So therefore due to this reason now it is called dibasic acid. So it is dibasic acid, but phosphoric acid H3PO4 is called polybasic or tribasic. Polybasic के ग्रुप में है, but that is tribasic acid. हिस्ट्री यहाँ पर देखें तो H3PO3 is called polybasic or tribasic acid because it loses 3H plus or 3 proton in aqueous solution. So H3PO4 get dissociate, produce thrice S plus PO4 3 minus. So dibasic acid having 2 dissociation constant and polybasic acid contain 3 dissociation constant. So like here dibasic acid contain 2 Ka1 and Ka2. So K1 and K2 दो पार्ट यहाँ पर आते हैं.
एक ही एसिड के लिए Ka1 is always greater than Ka2, right? The value of first dissociation constant is much more than the second dissociation constant. So that's indicate now H2SO4 is stronger acid than HSO4. Like stepwise down by score, तो H3PO4 get dissociate produces plus H2PO4 1 minus get dissociate H plus H2 2 minus H plus PO4 3 minus. Now here the value of here K1, K2 and K3. Here Ka1 is greater than K2 is greater than K3. So that's clear. Polybasic acid and dibasic acid इन सब में मोर देन वन डिसोसिएशन कांस्टेंट मिलते हैं स्टूडेंट, और फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड. दैट्स इंडिकेट नाउ हियर H3PO4 is stronger acid than H2PO4 minus 1 and it is more stronger than H2PO3 2 minus and this one is stronger than PO4 3 minus. So dissociation constant in dibasic and polybasic acid से हमें एक इंफॉर्मेशन और मिल रही है. यहाँ पर स्टूडेंट था एसिड. देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर डाई एंड पॉली एसिडिक बेस. डाई एंड पॉली एसिडिक बेस लाइक स्टूडेंट क्या करें तो मोनोबेसिक भी है, डाइबेसिक भी है. सो नेक्स्ट पॉइंट होगा लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट एक बेस है, right? Like barium hydroxide. Both is considered dibasic, diacidic base because when added in water they dissociate produce Ca plus twice OH minus. Now similarly Ba2 plus twice OH minus. Now azelaic acid base also contain two dissociation constant Kb1 and Kb2. Now here the value of Kb1 is greater than Kb2 होगा और यहाँ से उनकी बेसिक इक्वेशन की अबाउट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इससे क्लियर है कि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सेकंड से हाईएस्ट होगी, मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन का बेस क्या होगी, ज्यादा होगी. एंड हियर OH is considered acid. That's all. सो ऐसे ऐसे बेस जिनमें OH के नंबर मोर देन 2 होते हैं दैट इज कंसिडर्ड पॉलीबेसिक. लाइक जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ALOH का होल प्राइस. नाउ ये डिसोसिएट प्रोड्यूस Al3 plus thrice OH minus. So now here N is the 3. Now its acidity is 2. So dibasic and polybasic acid and diacidic polyacidic base. बोथ कंपोनेंट में एक ही चीज क्लियर है कि यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होंगी, जो एसिड की होंगी या बेस की, वो मोर देन 1 होंगी. एंड देन यहाँ से उनकी स्ट्रेंथ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये पॉइंट हो गया अबाउट द डाई एंड पॉली एसिडिक बेस एंड बेसिक एसिड. सो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे स्टूडेंट नाउ फैक्टर दैट अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. अब जो एसिड हमने यहाँ पे स्टडी किया है, यहाँ पर डाइबेसिक है, मोनोबेसिक है, ट्राइबेसिक है. इन एसिड को कौन से फैक्टर हैं जिनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर इन कंपेयर टू अदर. इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो हमें इस टर्म्स को देखना पड़ेगा. यहाँ पर मींस फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. तो उन फैक्टर के अबाउट में पढ़ना है जो एक एसिड के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं. खासकर हम यहाँ इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं. ऑर्गेनिक में जाएंगे तो बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं. उन फैक्टर के अबाउट यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे. लाइक जैसे माइनस साइड इफेक्ट, प्लस साइड इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ये सारे टर्म्स हम ऑर्गेनिक में यूटिलाइज करते हैं. बट हम यहाँ पर फिजिकल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स बताएंगे. सो पॉइंट वाइज जाएंगे और क्लियर करेंगे.
द स्ट्रेंथ ऑफ an acid first depend its dissociation. Its dissociation in aqueous solution. पहला फैक्टर अगर हम बात करें स्टूडेंट, किसी एसिड की स्ट्रेंथ इस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि वो एसिड कितना आसानी से वाटर में डिसोसिएट होता है और कितनी लार्ज एक्सटेंट में H+ आयन देता है। तो डिसोसिएट हो रहा है मीनिंग ये हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड एट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड एट the value of Ka means dissociation constant। एक एसिड की स्ट्रेंथ इस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना ज्यादा है। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई है तो दैट्स मीन that एसिड इतनी स्ट्रांग होगी। लाइक Ka is directly proportional to the स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, दैट्स ऑल। ये पहला फैक्टर हो गया जो एसिड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं और यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है। देन अगर बात करेंगे आपको तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एंड देन एक ही एसिड के लिए अगर हम बात करें तो मैंने इसका बताया कि अगर डाइबेसिक एसिड है, एज एग्जांपल H2SO4 है, स्टेप वाइज जाए तो हम बनाएंगे क्या H+ plus HSO4 minus and give H+ and SO4 minus. Here the value of K2 and this one is the value of K1. Here K1 is always greater than K2, so that's clear है कि this acid is stronger than this. So factor affecting the strength of acid mean ये first factor हो गया, that is the dependent the dissociation constant. तो किसी भी acid की strength स्टूडेंट उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस आयनाइजेशन कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल। सेकंड पॉइंट पे जाएंगे हम और यहां बात करेंगे इसमें एटॉमिक साइज को उठाएंगे। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एक एसिड की स्ट्रेंथ एटॉमिक साइज पर भी डिपेंड करता है। अगर वो एसिड एक ही ग्रुप के है तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स बने हैं। लाइक हम बात करेंगे आपको सो स्ट्रेंथ of acid in a group of periodic table strength of acid in a group of periodic table increase from top to bottom with increase in atomic size। जैसे से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है एसिडिक इंक्रीज होती है। रीजन ड्यू टू द increasing bond length, bond dissociation enthalpy decreases। मीनिंग ये हो गया इसलिए आपको कि अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। वहां पर टॉप टू बॉटम जाने पर अगर वो हाइड्रोजन से हाइड्राइड केस है तो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड एंथैल्पी रिड्यूस होगी और कंपाउंड आसानी से बॉन्ड ब्रेक करके H+ लूज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। दैट्स इंडिकेट नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम बट इन केस ऑफ हाइड्राइड्स। सो एज एग्जांपल ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं। G17 में है कौन HF, HCl, HBr एंड HI। हाइड्रोजन में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है और चारों के हाइड्राइड्स हमने ले लिया एज एग्जांपल। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा तो वो एसिड होगा स्ट्रॉन्ग
जो आसानी से H+ लूज करेगा वाटर में। ऐसे केस में हम ऑर्डर देंगे लाइक दिस, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड H चाहिए क्योंकि H इज कॉमन बट साइज ऑफ द एटम इन हैलोजन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन नाउ इंक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। तो Hi की बॉन्डिंग सबसे बड़ी होगी जिसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? सो स्टूडेंट बात करेंगे, हमें दो फैक्टर ने पढ़ा दिया फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में। एक हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्म डिसोसिएशन, और सेकंड हो गया आपका यहाँ पर साइज ऑफ एटम एंड बॉन्डिंग। किसी एसिड के बीच में जो हाइड्रोजन और अदर एटम उसके बीच का बॉन्ड जितना वीक होगा वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में अब थर्ड फैक्टर पे चलते हैं, बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, एक एसिड की स्ट्रेंथ उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है, और किसी कंपाउंड में अगर हाइड्राइड का केस है तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम वाला हाइड्राइड होगा दैट इज बिकम मोर एसिड। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इंक्रीज with increasing electronegativity of element. Electronegativity of element means CH4, NH3, H2O and H. Now here carbon, nitrogen, oxygen and fluorine are four elements now placed in the same period, now second period. But fluorine is the most electronegative, therefore its acidic nature is more than water, is more than ammonia and more than CH4. That's all. So now factor affecting the strength of acid हम स्टडी कर रहे थे, आपको हमने तीन फैक्टर आपको बता दिया है। One is the dissociation constant, जिस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हाईएस्ट होगा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकंड साइज ऑफ एटम एंड बॉन्ड एंथैल्पी, जिस एसिड का बॉन्ड वीक होगा वो आसानी से डिसोसिएट होकर मोर नंबर ऑफ H+ आयन देगा, उसकी एसिडिफिकेशन ज्यादा होगी। देन आपको हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्राइड के केस में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का हाइड्राइड होगा दैट इज बिकम मोर एसिडिक ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और हम बात करेंगे अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? द ionization of salt into cation and anion, into cation and anion, right? That is ionization of salt into cation and anion in water is called हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो किसी आयनाइजेशन जो होता है उसी को वर्ड देते हैं क्या? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट की बात करें यहाँ पर इन पॉइंट पर, तो स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट को। सो द आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट इनटू cation and anion इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट प्रोड्यूस होती है वो वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह हम फोर कंपोनेंट, फोर टाइप के एसिड बेस को अगर इंटरमिक्स करें दो दो को लेकर, टोटल हमें फोर सॉल्ट ऑब्टेन होंगे इसमें। तो उसमें पहला सॉल्ट बनता है, हम राइट करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एक सॉल्ट वो बनेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करूंगा इससे क्योंकि क्रिटिकल पार्ट है
एंड फॉर्मूला रेडी आपको न्यूट्रल ऐड कर दिए जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट्स इंडिकेट 100% गेट अनालाइज्ड इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का मीनिंग हुआ स्टूडेंट कि जो एसिड बेस होंगे वो 100% एनालाइज होंगे वाटर में, और ऐसे केस में 100% एनालाइज होने से इनका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। सो इनके लिए पीएच हम राइट करेंगे इज इक्वल टू 7। क्लियर? सो स्टूडेंट क्या करना, जो पॉइंट आपको मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो राइट करना है आपको, क्योंकि मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं कि the salt that obtained by chemical combination of strong acid and strong base when added in water, then due to the complete neutralization its aqueous solution is become neutral, means pH is 7. What example? अगर हम एग्जांपल की बात करें तो strong acid and strong base से बनने वाला सॉल्ट कौन सा हो सकता है आपको, तो हम राइट करेंगे NaCl। NaCl को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा आपको कि ये बन रहा है क्या, NaOH plus CaCl। Now here this one is the strong acid and this one is the strong base, so its pH becomes 7 due to the complete neutralization। And then after अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब हम बात करेंगे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अगर हम एक ऐसा सॉल्ट बनाते हैं जो केमिकल रिएक्शन से बनता है, किसके स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं और वीक बेस डालते हैं, तो वहां पर क्या होगा तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केमिकल कॉम्बिनेशन से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा, तो उसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो देन सॉल्यूशन कैसा होगा। आपको दिख रहा है कि वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट होने वाला है, एसिड। तो दैट्स क्लियर है। द aqueous solution of strong acid, solution of salt of strong acid and weak base. Strong acid and weak base, the aqueous solution of salt of strong acid and weak base is acidic in nature due to the complete dissociation of acid। वीक बेस है, इनकम्प्लीट डिसोसिएट होगा, बट वाटर में इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट डिसोसिएट होगा, और इसमें लास्ट सेक्शन में इसका साइन देगा, तो जो कैरेक्टर डोमिनेट होने वाला एसिडिक, सो दैट्स क्लियर है। नाउ pH इज बिकम लेस देन 7, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सो जब ऐसे सॉल्ट को हम ऐड करते हैं तो ये पॉइंट्स आते हैं। बात करेंगे एग्जांपल की, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से कौन सा सॉल्ट बनने वाला है, वो है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एंड देन तो ये बनाएगा क्या, NH4OH plus HCl। Here HCl is a strong acid but this one is the weak base, that's all। ऐसे एसिड में वीक बेस जो होता है वहां पर हाइड्रोलाइसिस ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, और जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन से यहाँ पर होती है अगर हम फॉलो करें तो NH4OH इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है और बनाता है क्या, NH4 plus OH माइनस। इन सच केस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा यहाँ पर, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम मेंशन करेंगे NH4OH, और साथ में वाटर मीडियम है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो Ks को हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे कि वीक एसिड है
तो हमारे लिए डिसोसिएशन या हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपॉन केवी, वैल्यू ऑफ केवी, क्योंकि वीक बेस है तो केवी यहाँ स्टेबलाइज होगा अगर हम इस वैल्यू को राइट करें, या इसको राइट कर सकते हैं, फॉर बेस है तो हम केवी राइट कर सकते हैं, एंड देन केएस की वैल्यू क्या पर होगी, हमारी प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कंसीडर करेंगे, एस प्लस और एच माइनस ये डब्ल्यू हो गया और केवी फॉर दिस। तो ये फॉर्मूला हो गया। यह हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट डायरेक्ट निकालना हो तो हम यहाँ पर राइट करेंगे, नाउ केवी अपॉन सी, यहाँ पर राइट कर सकते हैं, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना हो तो KH by C। What is KH? KH is the hydrolysis constant, KH is the hydrolysis. So degree of hydrolysis means अगर हमें फाइंड आउट करना है तो by this way. And then अगर हम एक ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है और उसको वाटर में डालते हैं तो उसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है, पीएच लेस देन 7 होता है, तो ऐसे का पीएच कैसे फाइंड करेंगे? पीएच फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैं राइट कर रहा हूं, pH is equal to minus half inside the bracket now log Kw minus log Kb plus log C। अब आनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पुट करें तो हम डायरेक्ट पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट। सेकंड पॉइंट है अबाउट द हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट एंड दैट कैन आर सॉल्ट दैट ऑब्टेन्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ a strong acid and weak base। इनका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट फार्मूला है पीएच फार्मूला। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट नंबर 3 होगा, यहाँ पर हमने सेकंड को बता दिया। तो हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो the aqueous solution of weak acid and strong base, weak acid and strong base, the aqueous solution of weak acid and strong base, sorry, the aqueous solution of salt of weak acid and strong base are basic in nature, are basic in nature, meaning ये basic in nature है। अब तो दैट्स क्लियर है कि बेसिक है तो pH ग्रेटर देन क्या होगा 7। ऐसे में ये कैरेक्टर डोमिनेट हो रहा है बेसिक, इसका रीजन स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो ऐसा कौन सा है सॉल्ट होगा जो वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो वीक एसिड का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर C3COONA। नाउ सोडियम एसीटेट, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो कंपाउंड बनेगा क्या आपको CH3COOH plus NaOH, that is strong base और ये weak acid। weak acid due to the incomplete dissociation, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा यहाँ पर स्टूडेंट, तो हम इसके लिए फॉर्मूला राइट कर दूंगा पहले कि नाउ वैल्यू ऑफ KH फॉर दिस वीक एसिड है तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपॉन वीक एसिड के से हमारा फॉर्मूला होगा कि मतलब ये क्लियर हो गया। अगर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट मेंशन किया न्यूमेरिकल में तो हमें हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड सॉल्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे और अगर ऐसे सॉल्यूशन के हमें पीएच फाइंड आउट करने हैं तो पीएच फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो नाउ पीएच इज इक्वल टू -12 लॉग जो फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पर राइट किया था Kw माइनस log Kb प्लस log C, क्योंकि यहाँ पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें यहाँ पर
और सॉरी वीक एसिड है तो के ए। तो ये डायरेक्ट बेस फाइंड आउट कर सकते हैं एक ऐसे सॉल्ट का जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से प्रोड्यूस हो रहा है। एंड नाउ नंबर 4 एंड लास्ट की बात करेंगे आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड। सो इसकी भी टर्म्स राइट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो दोनों वीक है। ये डिपेंड करता है कि अगर दोनों इक्वल एक्सटेंट में एनालाइज हुए तो न्यूट्रल हो सकता है, या तो एसिड ज्यादा एनालाइज हुआ तो एसिडिक, बेस ज्यादा एनालाइज हुआ तो बेसिक। तो यहां पर पॉइंट्स हमारा चेक होगा। सो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक or basic or maybe neutral or maybe neutral. So that's clear है इनका pH क्या होगा, greater than, less than or maybe equal। अब ऐसे सॉल्ट को अगर हम देखें एज एग्जांपल लो है तो कौन सा कंपाउंड है कौन सा सॉल्ट होगा इस टॉपिक का क्या करें पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट इसके पॉइंट पे लिए जाए तो वीक एसिड के लिए डिस्टिलेशन कांस्टेंट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होगा Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपॉन Ka into Kb, बोथ आर एप्लीकेबल। एंड द वैल्यू ऑफ pH जो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना डायरेक्ट मेथड के लिए वो है माइनस ऑफ log Kw प्लस log यहाँ पर A plus log Kw plus minus log Kw। एंड इन द एग्जांपल की बात करें कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज रखता है स्टूडेंट, जिसमें वीक एसिड वीक बेस, तो वीक एसिड वीक बेस से बनने वाला जो सॉल्ट होगा यहाँ पर वो होगा CH3COO NH4। ये सॉल्ट अमोनियम एसिड हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बनेगा CH3COOH प्लस NH4OH। क्या सो इस केस में आप ये वीक बेस हो गया और ये वीक एसिड, दैट्स ऑल। तो यहां पर हो गए पॉइंट हाइड्रोलाइसिस का सॉल्ट। तो स्टूडेंट So student आज चैप्टर 7 पार्ट 13 इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में जिन पॉइंट पर आज हमारा 3 रीडिंग पर डिस्कशन चला हुआ है अनएक्सेप्ट कांस्टेंट ऑफ डाई एंड पॉलीबेसिक एसिडिक एंड बेस, फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एंड देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। सो नेक्स्ट पार्ट मींस पार्ट 14 में न्यू पॉइंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।